Hello students, welcome once again to my video lecture series. In this video, we are going to look into the preparation of teachers for various disciplines, that is art, craft, music and physical education, the existing programs and practices. Now we see that art is the best medium of expressing one's creativity and imagination. This expression of creativity and imagination is in the form of performing arts or visual arts. Performing arts include those art forms that are performed in front of an audience, whereas visual art are those arts which can be visualized and it need not be performed in front of the audience, rather it can be shown to them in later period or later time. Now see this art, if you go to the origin of art, it dates back to very ancient time. In Indian context, if we see, it dates back to the Harappan culture, Harappan civilization, where we have found a bronze statue of dancing girl, a bearded man. So in that period also, there is an expression of their creativity, their imagination, and it has continued from that civilization to till date. And it has undergone numerous advancement with time. It has various stages of development, from the Buddhist era to the Mughals to the British, and in between the Indian form of art emerged. It has crossed the international borders, and as we know that art form, it does not recognize any area specific, or we can say it is universal in nature. And this creativity, if you go by the creativity and imagination, what for, it is it is we can say that it works these works are to be appreciated primarily for the beauty and or emotional power. No, what for art? Art is the manifestation of your emotions and your creativity, and this emotions or this creativity or this imagination has to be evaluated in terms of beauty. Now when we say that the development of a human child or a human being has to be all round, that means the apart from the cognitive, the affective, psychomotor, and you see for these development, sensitization of a human being is very necessary, and this sensitization comes from the their emotions, and that has a natural flow. From the very childhood, a child starts imagining and expressing his or her inner feelings through various forms, and one of the form is the art form. You notice any child, he tries to draw something on the ground or on the wall or in the paper. You give them some writing object, they'll start they'll start expressing their abilities in a form which they imagine, and gradually when they grow up, they go for colors, they express their imagination through colors, and this is the starting point of the art form. So this, we say the aesthetic sense has to be developed in children. For the all round development, this aesthetic sense is the sense of beauty. A human being has a tendency to create a thing or to beautify their surroundings,
or present something in a beautiful manner, and this beautiful manner or beautifying objects is nothing but arts. When you can take example of suppose the bodily movement, we all move, but the movement becomes beautiful when it takes the form of a dance. You see how the graciousness is being depicted through this dance form. So, what I want to explain is that without art, the expression of human creativity is impossible, and art is being reflected in many aspects of human life, not only in a particular thing or a particular form, but it has many forms. So, when we categorize, we say performing arts and visual arts, but if you come to our day to day life, we believe in art, and that is innate in our humanity, or you can say in ourselves, that is a innate potential. You see, we are in Jharkhand, and you see these tribal people, how creative they are, and how and the sense of beauty or the aesthetic sense is so immense in them that they beautify their surrounding. They paint their walls so colorfully, so nicely, that that is worth adorable. They put their imagination in their walls through which we call tribal paintings. What they actually do, they express themselves, they manifest themselves through the pictures, through these paintings, which they cannot speak out to the world. So, they express themselves and they try to beautify their surrounding, and by coloring that, by painting their walls with natural colors, and how beautifully and how neatly they do it. That is the main thing. So, art is not a property, or it does not belong to any particular race or community. It is universal in nature. So, this art form has to be included in the curriculum, and gradually after the independence, before if you go to the practices, this art education or preparing teachers, how teachers are prepared. Let me start with the art education and art and craft, and deal with the practices. Previously what was happening, this practices of art education was being handled through the family only. It is being passed from one generation to another. You see many art form in India that are still alive just because of the because it is a familiar business, familial business. You see, father transfers the art form to the son or the their spouses, so that it has continued up to this date. The art form in architecture, suppose if you see the temple architecture in India, across the India, the beautiness of Khajuraho, the beautiness of Konark, where many poets have said that the stone speaks here. Means what? These art, through these art they have manifested, even they have made the stones to speak. तो ये जो कला है, तो ये कला का जो क्लाइमेक्स है, जो क्या बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट है, ये किस तरह से पास ऑन होता था. प्रैक्टिस क्या था, ये कौलिक था, मतलब कुल का व्यवसाय था, कुल से ही निकलता था और कुल में ही सीमित रहता था. तो ये प्रैक्टिस हुआ करता था. तभी एक पर्टिकुलर अगर कोई पत्थर को तराशता है तो उसका जनरेशन पत्थर को तराशते हैं. आज भी उन जनरेशन से लोग हैं जो अगर पेंटिंग करते थे तो वो भी कुल के, तो जो अगर कपड़ा में आर्ट फॉर्म लाते थे वो भी उनका जो वीवर्स है उस सेक्शन से बिलोंग करते थे. तो ये प्रैक्टिस था. लेकिन जब मॉडर्न एजुकेशन आया और देखा गया
कि इस तरह से कॉलेज जो परंपरा है आर्ट फॉर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए वो संभव नहीं होता है। तो फिर हम क्या किए, उसको हम स्कूल या जो विद्यालय का पाठ्यक्रम में जो लाने का कोशिश किए, तो उसके लिए हम उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में सोचे कि ये हर मैंने प्रत्येक बच्चों को मिलना चाहिए, और जिसके पास ये जो आर्ट का जो इन्नेट टेंडेंसी है और जो क्या बोलते हैं उसका जो क्षमता है अगर है, तो उसको हम तराश सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए कि हम लोग आर्ट टीचर का अपॉइंटमेंट किए, जो कि वो कॉलेज वृत्ति से नहीं आकर कहीं से भी आ सकता है, जो जिस फॉर्म में महारत हासिल की है उसको हम लोग अपॉइंट करते थे, और उस हिसाब से हम स्कूल में उसको प्रैक्टिस करना शुरू किए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फॉर्मली ट्रेनिंग देके हम इस चीज़ को किए, और इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन सेंटर खुला, जिसके पास वो उसका जो बेंट ऑफ माइंड इंक्लिनेशन है वो जाके सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं शिक्षकों को। अगर हम आर्ट क्राफ्ट के बारे में बोले और म्यूज़िक के बारे में बोले, म्यूज़िक भी एक आर्ट फॉर्म है। इसके लिए कोई अलग से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, जैसे फिज़िकल एजुकेशन के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें डायरेक्टली यू कैन हैव ए डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और एनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़। बहुत सारे विश्वविद्यालय है, जैसे शांति निकेतन में शुरू हुआ था, आज भी कला भवन है वहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे डांस का अलग है, म्यूज़िक का अलग है, पेंटिंग का अलग है। तो वो क्या करते हैं कि वो तराशते हैं जिनको फील्ड में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों का उसमें रुझान है, वो जाके वो उसमें उसका अध्ययन करते हैं और उस कला को सीखते हैं और उसको जीवित रखे हैं, और वो जो सीख के निकलते हैं वो कहीं कहीं जाके फिर इस चीज़ को सिखाते हैं। तो इस तरह का प्रैक्टिसेस से ही हमारा जो आर्ट एजुकेशन होता है, आर्ट इवन क्राफ्ट भी बोले उसी तरह से हो जाए। कहीं स्पेशलाइज्ड कोर्स टीचर एजुकेशन के रूप में नहीं है, जनरल कोर्सेज के रूप में होता है। जैसे हम अगर बोलेंगे आर्ट का, तो हम लोग देखते हैं कि आजकल BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स, MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स, MA इन आर्ट्स म्यूज़िक, MA इन आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट अगर बोलते हैं तो डांस फॉर्म हुआ, म्यूज़िक हुआ, कुछ भी क्लासिकल, वोकल, इस तरह से हम डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी से मिलता है, नहीं तो किसी रजिस्टर्ड संस्थान से हम लेते हैं, जैसे वंगीय साहित्य परिषद है, और भी इस तरह से बहुत सारे, रविंद्र भारती से कुछ लोग उनका एफिलिएशन लेके चलाते हैं, तो ये भी रजिस्टर्ड है। तो अगर हम इसको देखें कि हाउ डू वी प्रिपेयर, वी डोंट हैव ए प्रिपेयरिंग मैकेनिज्म डायरेक्टली दैट इज being controlled by the NCTE, National Council for Teacher Education, that controls other teacher education courses including physical education। तो ये उसके अधीन नहीं आता है। इन जनरल लोग अपना शौक से अपना जो एबिलिटी है उसके माध्यम मैंने उसको देखते हुए वो लोग करते हैं, और इस चीज़ को फिर जब होता है कि टीचर अपॉइंटमेंट होना है, तो वहाँ से कोई डिप्लोमा किया होता है, तो स्कूल लेवल में, जैसे एलिमेंट्री स्कूल लेवल में अगर हम देखेंगे तो डिप्लोमा होल्डर्स कैन कम एज एन आर्ट टीचर इन एनी फॉर्म। जो चीज़ वहाँ चलता होगा उस स्कूल में, उन लोग उस तरह का टीचर को लेते हैं। सो ये आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूज़िक का बात हुआ। तो इस तरह से हम करके हम उसका प्रैक्टिसेस ऐसा था, अभी इस तरह से चल रहा है। And for the preparing or the existing programs are through the universities. Some are specialized universities in art and culture. They provide many degrees in art, many things. You see, be it performing or visual. Performing में music, drama, dance, ये सारा आता है। आप डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें। जैसे डांस फॉर्म में हम देखते हैं कि क्लासिकल डांस एंड कॉन्टेम्प्रेरी डांस फॉर्म। क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया में जितने तरह का क्लासिकलिटी डांस फॉर्म वो कहीं ना कहीं इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है, नहीं तो फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता है, जो कि वो मान्यता देना पड़ता है। मैंने वो स्किल्स भी होना चाहिए, केवल डिग्री तो नहीं होने से नहीं होगा, बट वी डेफिनेटली वी रिक्वायर सम ऑफ द स्किल्स, मैंने वो जो स्किल्स है उसको आपको आहरण करना पड़ता है, तो तब जाके आप उस फील्ड में आ सकते हैं, और वही लोग टीचर बन सकते हैं जिनके पास ये विद द रिक्विजिट डिग्री, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा और डिग्री
इन दैट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म वी नीड दैट परफॉर्मेंस स्किल ऑल्सो, मैंने वो जो डिप्लोमा डिग्री मिला है उसके साथ आप स्किल भी आपका ज़रूरत है। तो वो आके जैसे स्कूल में सिखाते हैं, आप देखे होंगे आर्ट, अगर आर्ट टीचर है तो दे स्टार्ट विद द बेसिक्स कि कैसे सीखे, मतलब दे हैव ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू आर्ट फॉर्म। हम लोग अगर किसी आर्ट फॉर्म थोड़ा बहुत जानते भी है, वी डोंट नो द सिस्टमेटिक अप्रोच। प्रिपरेशन का बात क्या है, प्रिपरेशन यही करता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे कोई चीज़ को ईजी बनाए। जैसे अगर आप देखे होंगे आपके बच्चे अगर आर्ट क्लास जा रहे हैं, मतलब वो टीचर कैसे सिखा रहा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। अब जैसे देखिए अल्फ़ाबेट लिखता है, उसको कुछ एक तो ऑब्जेक्ट बना देता है, तो वो कैसे लाइन ड्राइंग होगा, किस तरह से कर्व होगा, कैसे हैंड का मूवमेंट होगा, तब तो जाके वो एक आर्ट फॉर्म निकल। तो ये सिस्टमेटाइजेशन होता है सिखाने का। जो मतलब ये तो इनबॉर्न इननेट क्वालिटी तो है ही है, लेकिन जब हम तराशते हैं, किसी और को सिखाते हैं, बेसिक चीज़ कोई भी सीख सकता है। मैंने एकदम छोटा मोटा जो चीज़ है उस आर्ट का, उसको हम किसी को भी सिखा सकते हैं थ्रू ए सिस्टमेटिक अप्रोच। माने बेसिक्स, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल, सब कोई मैथमेटिशियन नहीं होता, लेकिन सबको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अरिथमेटिक आ जाता है कि अपना काम चला। वैसे सभी कोई मैंने आर्टिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जान सकते। सपोज हम बोलेंगे पेंटिंग, सबको नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत सबको आ सकता है, मैंने काम चलाओ सबको आ। तो इसीलिए हम इसको सिस्टमेटिक रूप में जिस तरह से टीचर देते हैं, तो वो प्रैक्टिस में आता है और स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट में सभी को सिखाया जाता है। क्योंकि ये जो आर्ट है, ये अगर बच्चा सीखता है कोई भी तरह का आर्ट, तो ये गिव्स यू सीरेनिटी, माने पीस आता है, एक माने शांति का भाव आता है। कभी भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, अगर आप उसी चीज़ को फिर से अवलोकन करते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा सृष्टि है। जब सृष्टा सृष्टि को देखता है तो वो खुश होता है। कोई भी चीज़ बना, ईश्वर भी जब इस पृथ्वी को बनाया होगा तो देख के वो भी खुश हो रहे होंगे। आप कोई भी छोटे बच्चे जब कोई एक पेंटिंग बनाते हैं, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो देखिए उस चीज़ को सभी को, फैमिली में सबको दिखाते हैं, मैंने वो खुशी अनुभव करता है कि ही हैज़ क्रिएटेड, मैंने अपना क्रिएशन, अपना सृष्टि। तो वो सृष्टा हुआ बच्चा, अब उसका सृष्टि। तो ये क्या होता है, शांति रहता है मन में, कॉन्फिडेंस भरता है। और ये सबसे ईजीएस्ट एंड द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि अपना एस्थेटिक सेंस उसमें डेवलप हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द आर्ट फॉर्म एंड द प्रिपरेशन एंड द प्रैक्टिस। नाउ कम टू द फिजिकल एजुकेशन। देयर इज़, देखिए बहुत कुछ है बोलने के लिए आर्ट में अगर ऐसे बोलेंगे, लेकिन भारतवर्ष में इस चीज़ का तो प्राचुर्य है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से कभी हर बच्चे के लिए हम सोचे नहीं। जैसे हम सब्जेक्ट के लिए सोचते हैं कि हर बच्चों को ये सब्जेक्ट, हम लोग एम्फेसिस डाले हैं स्कूल एजुकेशन में, किसी भी तरह का एजुकेशन में सब्जेक्ट को, ये आर्ट फॉर्म को उतना नहीं डाले हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आ रहा है, और ये चीज़ को अगर हम देते हैं तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक कंपैशनेट डेवलपमेंट, माने विद इमोशंस बच्चा डेवलप करता है। तो आप देखे होंगे, अगर आपको बहुत आप टेंशन में है, थोड़ा सा आप म्यूज़िक सुन लीजिए तो आपको एक सेरेनिटी मिलता है। आप जब खुश होते हैं, देखिए हम लोग कोई मैंने सपोज हम लोग सिंगर नहीं भी है, लेकिन बाथरूम सिंगिंग हम लोग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो वो हम जब गाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अंदर का जो इमेजिनेशन, जो क्रिएटिविटी है, तो वो निकल के आता है, हमें वो सेटिस्फाई करता है, और कहीं ना कहीं वो हमें शांति प्रदान करती है। तो दिस इज़ द थिंग। और ये जो हम करते हैं तो एक दूसरे के साथ उसमें जुड़ते हैं। तो पेंटिंग देखिए, पेंटिंग में जो एक्सप्रेशन है, तो उसका आप देखते हैं तो विभोर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो इमेजिनेशन में आप कहीं कहीं जा सकते हैं, मैंने कहीं से कहीं चले जाएंगे। तो उस चीज़ को लेके आप कितना फीलिंग आप में आ जाता है। जो उसका क्रिएटर है, आप खुद हैं, तो आप खुद के लिए, नहीं तो जो दूसरा कोई बनाया है, आप उसको देख के कि बहुत, मोनालिसा का पेंटिंग इतना फेमस हुआ, क्यों हुआ, तो लोग इसको किस रूप से देखते हैं, तो वो एक तो फीलिंग है उसमें। वो जो उसका जो स्माइल है, वो जो मोनालिसा पेंटिंग में आप देखे होंगे, तो वो क्या करता है कि सोचने के लिए विवश करता है आपको। और वो जो सीरेनिटी, वो जो चेहरा में उसका जो सीरीननेस है, उस चीज़ को आप देख के अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि ये जो इसका जो सृष्टा होगा, जो बनाया होगा इसको, वो क्या सोचा होगा, कि किस तरह से सोचा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, और ख़ास करके ये ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक, एनी अदर आर्ट फॉर्म, सब आर्ट फॉर्म, इसमें परफॉर्मिंग हो या विजुअल हो, सब आ जाएंगे।
नाउ कम टू द फिजिकल एजुकेशन। ये प्रैक्टिसेस क्या था फिजिकल एजुकेशन, अगर आप एंशिएंट काल में जाएंगे वो भी कॉलिक था, माने वो फैमिलियल था। माने अगर कोई कुश्ती कर रहा है तो उसका बेटा कोई धावक है तो उसका बेटा भी धावक, तो उस तरह से वो फैमिली ट्रेडिशन में सीखता था कि फादर से बच्चों को ट्रांसफ़र होता था। बाद में चल के वो सिस्टमेटाइज हुआ गुरुकुल सिस्टम में। उसको देखा गया कि जो अगर उसका कंडीशन वैसा है तो फिजिकल एजुकेशन की, जैसे कुश्ती का अखाड़ा बनने लगे तो अखाड़ा में लोग सीखते थे। तो इस तरह से फिजिकल एजुकेशन इसलिए आया कि ए साउंड बॉडी मेक्स ए रेसिडेंस ऑफ ए साउंड माइंड। मतलब साउंड माइंड जो है, एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है, एक स्वस्थ शरीर में वास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो शारीरिक शिक्षा, इस पे हमको जोर देना पड़ेगा। तो ये शारीरिक शिक्षा को हम लोग बहुत अच्छे से अपनाएं, और प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, प्रत्येक विद्यालय में इस चीज़ को हमने एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा। ड्रिल प्रैक्टिस हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, सब तरह का हम इसको, माने आर्ट एजुकेशन से इस पे ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए इसका एक तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी है। ये पुराना प्रैक्टिस ऐसा था। नया प्रैक्टिस में क्या है, अगर आप आर्ट या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनाना चाहते हैं तो वैसा संस्थान से आपको करना पड़ेगा जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, जो कि डिग्रियां देती है बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, एंड एमपीएड, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। जहाँ जिस इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा वो एनसीटी का जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसके तहत ही दिया जाएगा, और वही रिकॉग्नाइज करता है। तो ये इसका एक तो स्पेशलाइज्ड डिग्री है जिसको करके हम टीचर बनते हैं। इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं। अलॉन्ग विथ हम जो ये टीचर एजुकेशन के ये में करते हैं, तो वो बाकी टीचर एजुकेशन का भी कुछ कोर कोर्सेस है, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारा को लेते हुए हम फिजिकल एजुकेशन स्पेशलाइजेशन करके उसको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनाते हैं। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि अगर वो फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो उसे एटलीस्ट बीपीएड होना है। और अगर हम इसी चीज़ को हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपॉइंट करेंगे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो उसको एमपीएड होना है, तो मास्टर डिग्री होल्डर होना है। तो ये सिस्टमेटाइजेशन आया, वो भी सिस्टमेटिक तौर से। देखिए, हर कोई फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये ज़रूरी है। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन को जो शिक्षक है वो बेसिक सबको, मैंने अभी कहा कि हम आप सब चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको सब चीज़ आना भी चाहिए फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो माने ठीक रहे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का, आप इसमें भी देखिए स्कूल्स में अगर बीपीएड एमपीएड नहीं है तो आप आजकल योगा का ट्रेंड चल रहा है, तो हम वो भी एक फिजिकल एजुकेशन का ही एक फॉर्म है जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से यानी प्रयोग करते हैं। तो आपको भी पार्ट टाइम के रूप में हम लोग उनको भी शिक्षक मान लेते हैं। और मैंने क्योंकि वो उस कौशल, मैंने जो योगा प्रैक्टिसेस पे बहुत निपुण होते हैं और वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनफॉर्मली भी प्रिपेयर कराते हैं और फॉर्मली विद मैंने अप्रूव्ड डिग्रीज़ हम प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली अप्रूव्ड डिग्रीज़ वालों को हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट देते हैं। वो नियम है उसका, उसी नियम के तहत उनका अपॉइंटमेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन स्टिल वी हैव टू रिलाई अपॉन some of the forms of physical education. Those are devoid of any degrees from the universities, but they have the requisite practices and they have मैंने क्या बोले, वो लोग अपने आप को इतना निपुण बना लिया कि वो कोई डिग्री के मोहताज नहीं है। तो उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ है नहीं इस टॉपिक में, इस तरह से बना के इस चीज़ को देखिए, पढ़िए इस चीज़ को। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स फॉर वेरियस डिसिप्लिन। आई होप आपको ये समझ में आया जितना मैंने बोला। बोलने के लिए अगर उसका इतिहास में जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये इसने रेस्ट्रिक्ट किया है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस, तो वो एग्जिस्टिंग में क्या है और कैसे हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम उसको मैंने जो कार्यान्वयन उसका होता है कैसे होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने बताया जितना हो सका।
आशा करता हूँ कि आपको आप सभी को समझ में आएगा. इट इज़ नॉट अ वेरी मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक, बट देन वी शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो एज ए टीचर टीचिंग. ये तो टीचर का जो जॉब होता है वो होता है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग्स. तो ये कोई भी फील्ड में हो, वो किसी भी सब्जेक्ट हो या नॉन सब्जेक्ट, जैसे ये हम लोग इसको अगर सब्जेक्टिव नॉन सब्जेक्टिव बोलेंगे, सब्जेक्टिव जो कोर कोर्सेस है और नॉन सब्जेक्ट में ये सारा चीज़ आ जाता है. तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हम लोग देते हैं, ताकि थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, फिजिकल एजुकेशन की बात आता है तो ओनली थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ एंड दैट टू रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE, तब जाके हम शिक्षक अपॉइंट कर सकते हैं और ये शिक्षक को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आज इतना ही. इसी के साथ हमारा हमें जो पोर्शन अलॉटेड था ये यहाँ पे समाप्त होता है. ये हमारा आखिरी वीडियो है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस वीडियोस. अभी का वीडियो जहाँ डाउट है आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरे वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज पुट योर क्वेरीज. अगर कॉलेज खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए भी इसको डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को. सो टिल देन, फॉर टुडे इट इज़ दिस मच ओनली. बेस्ट ऑफ लक for your exam preparation. Thank you and take care.